مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار وغیرہ نہیں کر سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں، کھا لیں، پی لیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں نہ کہ کھانے پینے کے لیے۔ اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک کھائیں پیئیں، یہ افطار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 نجی کے ذی قعد شریف کی 27ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی نمبر صلی اللہ علیہ وسلم 27، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد علی ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عموماً ہمارے گھروں میں غصے میں والدین اکثر بد دعائیں دے دیتے ہیں بچوں کو، اولاد کو، یا پھر دوست احباب ایک دوسرے سے غصے میں تکرار میں کہہ دیتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ، یا ایسے کچھ کلمات ادا کر دیتے ہیں، تو یہ کہنا درست ہے؟ اور اس میں کیا واقعی ایسی باتوں میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ حقیقت میں اس کا کیا تاثر ہے، یہ ذرا بتا دیجیے۔ ہاں، بچوں کو تو مائیں کوسنے دیتی رہتی ہیں، بعض اوقات بعضوں کی عادت ہوتی ہے، تو ڈڑ پڑے تو مر پڑے تو پھٹ پڑے تو اس طرح تیرا جنازہ اٹھے، تیرا منہ نہ دیکھوں وغیرہ، تو اس طرح کی بد دعائیں نہ دی جائیں، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر یہی دعا قبول ہو گئی اور یہ بچہ جو ہے اس پر اس کے اثرات مرتب ہوئے اور وہ
मर गया या जख्मी हो गया या बीमार पड़ गया तो सदमा माँ को तो सबसे ज्यादा होना है। फिर मतलब ये कि ज़रा पछताने का वक्त आएगा तो कबूलियत की घड़ियां होती हैं, तो अच्छे अल्फाज ही मुंह से निकाले जाएंगे। जैसे इसको कोसना ही है बिलफर्ज, तो कोसने की जगह ये कि तू मदीने जाए, हाजी बने, इस तरह का मतलब है। इसको किसी पर भी गुस्सा है तो इस तरह अगर याद आए ना कि तुझे अल्लाह 7 हज नसीब करे, ये पुराने बड़े बूढ़ों की दुआएं ये थी, बड़ी बूढ़ियां तुझे अल्लाह 7 हज नसीब, खुश होती थी ना, अल्लाह तुमको 7 हज नसीब करे। तो इस तरह की अगर बातें बोलने के अगर जहन बनता है, आदत पड़े, अल्लाह करे, अल्लाह तुझे पक्का नमाजी बनाए, अल्लाह तुझे तहज्जुद गुजार बनाए, तंग मत कर, अल्लाह तुझे दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए, इस तरह अगर अल्लाह करे कि जहन बन जाए और बोलना आ जाए तो मदीना मदीना। वरना ये कि वाकई कोसने देते हैं और बात बात पे झाड़ना डांटना नुकसान दे। वैसे भी इस तरह की कोसनों से भी बच्चा थोड़ी मानता है, या बार बार डांटने झाड़ने से भी थोड़ी मानता है, वो तो ढीठ हो जाता है, वो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, आदी हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वैसे इसमें आपकी बात से तो हर तबका रहनुमाई ले, मुझे आपकी गुफ्तगू से हमारे मकतबतुल मदीना के स्टॉल की एक बात याद आ रही थी, बहुत पुरानी बात। जब नया नया फैज़ान मदीना में इज्तिमा शुरू हुआ था तो स्टॉल पर काफ़ी रश होता था, तो मैं भी कुछ किताब ये कुछ लेने गया हूँगा, तो एक छोटी उम्र के तो बार बार तंग करा दिए, ये कितने का है, ये कितने का है। तो स्टॉल पे जो खड़े थे वो कह रहे अल्लाह तेरा बेड़ा पार करे, ऐसा बेटा ऐसा नहीं करो। तो आम तौर पे तो कहा जाता है तेरा बेड़ा गर्क हो, तो तेरा बेड़ा पार हो, ऐसा नहीं कर। तो यूं आपकी बात से कि वो जो तंग करने वालों को कुछ इस अंदाज से दुआएं दी जाए, ना कि उसको बद्दुआ दी जाए। माशाअल्लाह, ये मकतबतुल मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, किसी ने अगर हमसे कोई चीज़ आर्जी तौर पर ली और वो देना भूल गए तो इनसे अपनी वो चीज़ वापस किस तरह मांगे कि उसे शर्मिंदगी भी ना हो, बराए करम इरशाद फरमा दें। जो भी मुनासिब तरीका हो उस तरीके से मांगने में हर्ज तो नहीं, अपना हक है आपका। और मुझे कभी कोई दे ना तो वो तो जरूर मांग लिया कि बाद होगा मैंने इस पे परेशानियां उठाई हैं, किसी ने कलम दे दिया मुझे कुछ लिखने के लिए, वो भी कसदन भी देते होंगे कि सबको बता सकें कि ये इस्तेमाल किया हुआ फुला का। अब मैं रख लूँ जेब में, अब वो मुरब्बत में बोले नहीं, बाद में मैं देखूंगी आया कहाँ से, ये है किसका, अब ढूंढो मैं मालिक को। तो यूं बड़ी होने का परेशानी होती है। मेरी लाइब्रेरी में कभी कभी कोई किताब निकलती है ना तो किसी का नाम लिखा होता है, अब मतलब एड्रेस तो लिखा होता है नहीं लिखा होता है, फोन नंबर लिखा हो नहीं लिखा हो, तो अब मैं परेशान, अब मैं करूँ क्या, इसका है किसी का नाम, ये किसी किताब है। अच्छा, बात भोले भाले होते हैं, ये अपना नाम लिखकर भी मुझे देते होंगे तोहफे में, खाली नाम लिख दिया कि यादगार रहेगी मेरी। अब मैं परेशान कि यार ये कोई मेरे पास आकर भूल तो नहीं गया, इस तरह भाइयों का आना जाना तो होता है ना, अब क्या होगा। तो इससे हुआ है मेरे साथ कई बार कि मैं फिर किसी इस्लामी भाई की जिम्मेदारी लगाता हूँ कि यार अब ढूंढो इसको, फिर वो लुक्ते का जो भी शरई मसला है मैं उस पर अमल करता हूँ, और क्या करूँ। तो इसलिए मुझे कोई चीज़ दो ना तो आप शर्माए नहीं करो, आप मांग लिया, और अगर माफ़ करना है तो वो भी मुझे बोलना पड़ेगा ना कि भाई आपको जो मैंने कलम दिया था ना वो आपका हुआ, वरना मैं देखूंगा तो मैं तो ढूंढूंगा ना आपको। अब आपने दिल में माफ़ कर लिया तो वो कैसे पता चलेगा। यूं मांग लेना चाहिए कि अगर कोई हुस्सास तबीयत हुई, होनी भी चाहिए ना, आखिरत का मामला है, किसी की चीज़ भूल कर रख ली तो वो इस्तेमाल कर रहे, फिर याद आया तो देनी तो पड़ेगी ना, है तो उसी की, वो ना रहा तो उसकी जो भी वारिस है उनको देनी होगी, फिर भी कोई ना मिला तो फिर इसको राय खुदा में दे दे। इस तरह मतलब ये बता देना अच्छा है। हाँ, बताए अंदाज अच्छा हो, अरे भाई मैंने तुझे गिफ्ट नहीं किया, काम आर्जी तौर पे दिया था, टेम्परेरी, लाओ, ये तो फिर शर्मिंदा होगा वो।
अच्छे अल्फाज कौन से हो सकते हैं? मेरा ख्याल है जिसमें अक्ल है उसको तो समझ पड़ती होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इस किस्म की और भी जो एहतियातें हैं, तो एक मकतबतुल मदीना का बड़ा खूबसूरत रिसाला है अमीर अहले सुन्नत की एहतियातें, और ख़ासकर मदनी मुज़ाकरे के जो सवाल जवाब पर आप मकतबतुल मदीना के रसाइल देखेंगे तो उनमें आपको इस तरह के सवालात और इस पर जो अमीर अहले सुन्नत की जो तरबियत मिलती है, तो ये बड़ी खूबसूरत आपको तरबियत मिलेगी कि किस तरह से अंदाज़ इख्तियार किया जाए। और ये जो पराया माल होता है, मुफ्ती साहब इस पर क्या फरमाते हैं? जो बाद औक़ात इस तरह से जो पड़ी हुई जैसे लुक्ते का जो हुक्म फरमाया, अगर इसकी थोड़ी वजाहत हो जाए। लुक्ता उससे कहते हैं जैसे कहीं किसी को कोई चीज़ गिरी पड़ी मिल गई और उसके मालिक का उससे पता नहीं, तो इस नीयत से उठाना जायज़ है कि मैं उसको ढूंढूंगा, तलाश करूंगा। अपनी ज़ात के लिए उठाना जायज़ नहीं, कि अगर अपनी ज़ात के लिए उठा लिया तो अब हुक्म यही होगा कि मालिक को तलाश करे, और इतना अरसा गुज़र जाए कि मालिक नहीं मिलेगा या मालिक उसको तलाश नहीं करता होगा, तो उसको किसी शरीफ फ़कीर मुस्तहिक़ ज़कात को दे दे। और अगर अपनी ज़ात के लिए नहीं उठाई थी बल्कि इस नीयत से उठाई थी मालिक तक पहुंचाएगा, लेकिन मालिक ढूंढने के बावजूद, तशहीर पब्लिसिटी के बावजूद उसे नहीं मिल रहा, अरसा गुज़र गया, तो अब इस चीज़ को वो मतलब सदका भी कर सकता है, किसी भी मसरफ़ खैर यानी मस्जिद मदरसे में भी दे सकता है। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। अमजद अली सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ नमाज अकेले पढ़ने की सूरत में तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा आधी या थोड़ी सी पढ़ सकते हैं या नहीं? फ़र्ज़ की तीसरी चौथी में बेहतर यही है कि सूरह फातिहा पूरी पढ़े, और अगर मुनफरिद है, अकेला है, तो बेहतर ये है कि सूरत भी मिलाए, वरना ये कि 3 सुबहान अल्लाह कह लिया या 3 सुबहान अल्लाह जितना चुप खड़ा रहा तब भी मतलब है कि नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सवाल एसएमएस के ज़रिए कर रहे हैं कि दौराने नमाज सो जाने वालों की नमाज का हुक्म क्या है, जो नमाज में सो जाते हैं? हज़रत सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह रद्दुल मुहतार वगैरह के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि पूरा कायदा अखीरा ने आखिरी कायदा जिसमें अत्तहियात और दुरूद शरीफ भी हम लोग जो पढ़ते हैं, तो कायदा अखीरा सोते में गुजर गया। बाद बेदारी बकदर तशहुद बैठना फ़र्ज़ है, यानी जाग आ गई तो जितनी देर में अत्तहियात तो पढ़ लेता है पूरी, उतनी देर बैठना फ़र्ज़ है। और वैसे असल कायदा जो फ़र्ज़ है ना वो यही है कि अत्तहियातों का हर हर्फ हम पूरा पढ़ लें। तो बाद बेदारी ने जागने के बाद बकदर तशहुद बैठना फ़र्ज़ है, वरना नमाज ना होगी। यूं ही क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद में अव्वल से आखिर तक सोता ही रहा तो बाद बेदारी इनका इआदा यानी इनका लौटाना फ़र्ज़ है, वरना नमाज ना होगी। और सजदे सहव भी करे, लोग इसमें गाफिल हैं, खुसूसन तरावी में, खुसूसन गर्मियों में। बहार शरीयत पहली जिल्द हिस्सा 3 सफ़ा 515 दावत इस्लामी का जो मकतबत मदीना का है उसके ये हवाला है इसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद एहसन है। मेरा हज़रत साहब से सवाल है कि बाप का अपनी शादीशुदा बेटी को कुर्बानी का जानवर गिफ्ट करना और अपने शौहर के कहने पर बेटी का अपने बाप से कुर्बानी का जानवर लेने का मुतालबा करना, इन दोनों सूरतों में आपकी क्या राय है? बाप बेटी को गिफ्ट करता है कुर्बानी का जानवर तो कोई मसला ही नहीं, उसको कर सकता है। और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को भी गिफ्ट कर सकता है कुर्बानी का जानवर। अच्छा, अब ये कि बीवी का शौहर से मुतालबा कि मुझे कुर्बानी का जानवर दो, अब इसमें ऐसा है कि दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे से मांग कर चीज़ें लेते हैं और कीमती चीज़ें भी ले लेते हैं और आपस में तरकीब है इनकी।
जब तो मांग लिया तो कोई मसला नहीं है, वरना ये कि ना मांगे। और इसरार तो बहरहाल ना, इस दौर में तो कुर्बानी के जानवर का मुतालबा भी ना ही करे कि बहुत ज़ाहिर है कि अब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ज़ाहिर है कुर्बानी के जानवर भी महंगे हो गए, ना मांगे। वरना वो मांगने की सूरत वो मैंने आपको जो अर्ज़ की ना, उसमें हर्ज नहीं थी कि अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग, हर्ज नहीं है। अब महंगा जानवर है ठीक है, लेकिन वो शोहर है भी इतना ही मालदार, उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, तो फिर मांग लिया तो कोई हर्ज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर ये सूरत हो कि जैसे शोहर बीवी से कह रहा है कि अपने वालिद से आप ये जानवर का तकाजा करें, सवाल करें, तो अब बेटी सवाल करती है और बाप ये सोच के देता है कि अगर मैंने नहीं दिया तो इस सूरत में बेटी का घर कहीं ख़राब ना हो जाए, आपस में कोई बदनज़मी वाली सूरत ना हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? अंडरस्टैंडिंग तो आपने पहले इरशाद फरमा दी। एक दूसरा पहलू भी इसमें निकल सकता है कि उमूमी तौर पे इस तरह मुतालबा नहीं किया जाता है कि शोहर अपनी बीवी से कहे कि तुम अपने वालिद से कहें कि हमें कुर्बानी का जानवर दो, तो इस पहलू पर आप क्या फरमाते हैं? अब अगर शोहर मुतालबा कर रहा है, बेटी भी ये कह रही है, बाप को पता है कि बेटी अपने लिए नहीं मांग रही बल्कि शोहर के लिए मांग रही है, वरना वो शोहर जो है वो मुझे तंग करेगा, मुझ पर जुल्म करेगा वगैरह, तो ऐसी सूरत में बाप ने दिया या कोई भी शय दी, कोई भी माल दिया, तो वो चूँकि उसके शर से बचने के लिए दिया है, तो शर से बचने के लिए जो दिया जाता है माल, वो रिश्वत कहलाता है। यूं फिर ये कुर्बानी के तौर पर गया, और बाप गुनाहगार नहीं होगा क्योंकि वो अपनी बच्ची का घर बचाना चाहता है, लेकिन शोहर लेने वाला जो है ये गुनाहगार होगा। तो यूं तो आजकल बहुत मुतालबे होते हैं। अब आम का सीज़न है तो आम की पेटियां देनी पड़ती हैं, और आला दर्जे के आम, एक पेटी से भी शायद हर जगह गुजारा नहीं होता होगा, कहीं कहीं दो दो तीन तीन पेटियां, और बिल्कुल बेहतरीन और बाज़ार की फर्स्ट क्वालिटी का, कि अगर इनको कमज़ोर आम दिए तो ये कुड़कुड़ करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, नहीं दिए तो फिर वो तो खैर ही नहीं है, बेटी को घर भेज देंगे कहीं, समझे, कि तेरा बाप इतना कंजूस है, तेरी माँ इतनी मतलब कंजूस है, हमको आम नहीं दिए। तो यूँ मतलब ये कि ये वो है सूरत कि जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल दी, तो ये रिश्वत है। इस तरह ये आम भी रिश्वत में जाएगा। इसी तरह हज पर जा रहा है तो इसको बेहतरीन हदीया देना पड़ेगा, भाई सूट पीस भी देना पड़ेगा, तो बहुत कीमती तस्बीह हाथ देनी पड़ेंगी, तो इतना इतना मतलब इन्हें टाफियाँ, तो इतना इतना माल इनको देना पड़ेगा ससुराल वालों को। अगर नहीं देते तो ये तो मेरी बेटी का जीना आराम कर देंगे। तो अभी हाजी साहब ने जो दिया ये तबर्रुक नहीं है इनके हक में, ये भी रिश्वत है। तो ये रिश्वत कई जगह बन जाती है, शर से बचने के लिए जो दी जाती है तो ये रिश्वत बन जाती है। इस तरह दोस्त है, भाई आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने नेमत दी, अब वो मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। अब दोस्त ऐसा है कि नहीं खिलाओगे तो ये हर जगह तंग करता रहेगा, लोगों को बोलेगा, दोस्तों में बदनाम करेगा कि यार बड़ा कंजूस है। ये खुशी का मतलब है ना, मौका है यार, मेरा मुंह मीठा नहीं करवाया इसने, बेवफा दोस्त है यार। तो इस तरह ग़ीबतों का सिलसिला, और ये दोस्त अगर इसका मुंह बंद करने के लिए मिठाई वगैरह देता भी है तो ये मिठाई उस दोस्त के हक में रिश्वत है। ये गौर कर लिया, आम तौर पे बोलते हैं मिठाई खिलाओ, मंगनी हुई मिठाई खिलाओ, फुला हुआ मिठाई खिलाओ, ये आम है। लेकिन ये देख लें कि या तो ऐसी फ्रेंडशिप है कि एक दूसरे के इस तरह मांग मूंग के लेकर खाते पीते हैं जब तो कोई मसाला नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है और ये कि यानी कि बिल जबर एक तरह का ये जबर है, अगर ये गन पॉइंट पर नहीं ले रहे लेकिन ये जबर है कि बदनाम करेगा, तो ये रिश्वत बन जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग है तो रिश्वत नहीं है। लेकिन इसमें गौर करना, अंडरस्टैंडिंग में यार सब चलता है, हमारी तो बहुत तरकीब अच्छी है, मैं तो मांग के खा लेता हूँ इससे, अब ये मांग के खा लेता हूँ ये चलेगा नहीं। कि वाकई अगर वो बुरा मान रहा है, नागवारी की सूरत में वो अपनी जान छुड़ाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए खिला पिला रहा है, तो ये रिश्वत है, हराम है।
जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जितना खाया वो उगलना पड़ेगा। जी हाँ, निगल लिया ना, अब उगलेंगे यूं कि जो भी माल बतौर रिश्वत लिया गया वो इसकी मिल्क में आता नहीं है लेने वाले की। ये डाकू जिस तरह छीनता है, चोर चोरी करता है, तो माल का मालिक तो बनता नहीं है। तो इसी तरह रिश्वत लेने वाला उस माल का मालिक नहीं बनता। ये जिसका उसको लौटाना फर्ज है उस पर वो तौबा भी करे, दिल आजारी हुए तो माफ़ी भी मांगे। ये जितने रिश्वत खोर है ना, ये खुसूसन गवर्नमेंट के जॉब के लिए लोग मरते हैं, उसमें अंधी बहुत चलानी हो चांस होता, अंधी चलती है, फिर रिश्वतों की तरकीबें होती है। रिश्वत, जिन सीटों पे रिश्वत मिलती है ना, वो सीट हासिल करने के लिए भी रिश्वतें देनी पड़ती है। जी हाँ, न रिश्वत खोर बनने के लिए पहले रिश्वत खोरों को हड्डियां डालनी पड़ती हैं इन कुत्तों को, तो फिर जाकर वो कहीं वो ऐसी जॉब मिलती है। और बाद में भी इनके सबके हिस्से बटे होते हैं, तरकीबें होती हैं, इतना मिला तो इतना परसेंट इसका। ये खासकर थानों में ये तरकीब ज़्यादा होती होगी। ये बहुत मतलब बुरी हालत। जब भी तो जो गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, अमन पारा हुआ पड़ा है, हर चीज़ में रिश्वत, इतनी मिलावट वाले माल, इतनी चीज़ें, ये सब के कानून बने हुए हैं, लेकिन अमल इसलिए नहीं हो रहा कि रिश्वत है, वरना तो मतलब सब सीधे हो जाए। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है हमारे यहाँ, क्या मतलब वो रिश्वत, वरना मजा लेकर कोई मतलब गड़बड़ कर जाए। बाज़ जगहों पे देखा है, मतलब जिस मुल्क में मैं हूँ, अगर गाड़ी भी गलत पार्क कर दी, पुलिस वाला आएगा और सलाम करेगा, आपको बोलेगा कुछ भी नहीं, और ना गुस्सा करेगा ना झाड़ेगा, सलाम करेगा, एक चिट्ठी लिख के डाल देगा। आप देखोगे तो फिर आपके पाँव तले ज़मीन निकल गई। 500 दिरहम, 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, वो जैसे मतलब जैसा मौका, वो चिट्ठी जो है ना आपका होश उड़ा देगी, नींद बर्बाद कर देगी। तो इसलिए यहाँ ट्रैफिक ऐसा निज़ाम चल रहा होता है, यकीन माने कोई भूल कर भी गलत पार्क नहीं करता। तो हमारे क्या होता है, जिसकी मर्जी से कुर्बानी या बकरा नहीं अड़ी कर जाता है, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इस तरह गाड़ियाँ भी अड़ी करके रोड के बीच में खड़ी कर देते हैं, किसकी मजा ले जो रोके। अच्छा, आपको आ गया तो इंसान थोड़ी आएगा, डॉगी आएगा तो उसको कुछ दे देंगे, तो मिला तो चला जाएगा। ये जनरल बात कर रहा हूँ, सब नहीं होते ऐसे सही भी परफेक्ट भी होते हैं कि जो मतलब रिश्वत नहीं लेते और गाड़ी बंद कर देंगे आपकी। तो यूँ फिर भी अल्लाह से डरना भी चाहिए कि इस तरह लोगों के रास्ते बंद कर देना, और ज़ाहिर है कि हुकूक अम्मा तलफ होते हैं, लोगों को तकलीफ़ें होती है। और इस तरह मतलब ट्रैफिक का जो निज़ाम है, ये तकरीबन जो है ना, ये हमारे भले के लिए होता है। तो ये पुलिस बोले ना बोले, हमें उसको मतलब निभाना चाहिए, और उसके मुताबिक हम करेंगे तो, वरना ट्रैफिक जिधर देखो ट्रैफिक हमारे यहाँ जाम होती है। और बाज़ औक़ात वजह होती है जाम होने की जो दुरुस्त होती है, बाज़ औक़ात बिला वजह जाम हो जाती है। ये कानूनी कि इसने गाड़ी आगे निकाल ली, इसने आगे गाड़ी खड़ी कर दी, वो गाड़ी रोक के चाय पी रहा है, कोई गाड़ी रोक के गप्पे मार रहा है अपने दोस्त है स्कूटर वाले से, और ट्रैफिक जाम पड़ी है आगे, किसी को पीछे पता नहीं है कि ट्रैफिक क्यों रुकी है। भाई ट्रैफिक इसलिए एक दादागिर खड़ा हुआ है, ये बातें कर रहा है, हम किसी के बाप से नहीं डरता। इस तरह के लोग होते हैं, तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। अल्लाह के बंदों को राहत दोगे तो आपको दुनिया आखिरत में राहत मिलेगी। अगर अल्लाह के बंदों को ईज़ा दोगे, तकलीफ़ दोगे, तो वो ईज़ा आपको मिलेगी कि फिर इसका कोई बदल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। निगरान शूरा भी हमारे साथ बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे में है, सलाम भी अर्ज़ कर रहे हैं। और एक बात फरमा रहे हैं कि जो अभी आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि वो पुलिस वाला आता है, वो पर्ची देता है, तो साथ में मोबाइल पर मैसेज भी आता है कि इस तरह का जो मामला है, तो इस पर आपको ये पेनल्टी या जो भी लगी है वो भी आपको मिली है। अच्छा, दूसरा निगरान शुरा ने एक बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाई कि आपने जिस तरह अभी फरमाया है दावतों का और तोहफे में जो रिश्वत का, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें इस बारे में इल्म सीखना पड़ेगा कि ज़ाहिर मुख्तलिफ़ ओहदे होते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ महकमों का फरमाया, तो अगर किसी की कोई पोस्ट है
تو اس کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے وہ دعوتوں میں یا تحفے لینے دینے میں کچھ معاملہ کرنا ہے تو یہ سب سیکھنا پڑے گا. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے فیضان سنت، تو اس کا ایک چیپٹر ہے آداب طعام، تو پیج نمبر ہے 540. تو اس پیج نمبر 540 سے جو ہے اس کا پورا چیپٹر پر امیر اہل سنت نے تحفہ کب رشوت ہوتا ہے اس موضوع پر بڑا پیارا تحریر بیان کی ہے. تو جو بھی اس طرح کی کوئی پوسٹ پر ہیں، کوئی عہدے پر ہیں، تو انہیں ضروری اس کا معلومات حاصل کرنی چاہیے، علم حاصل کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کا گھریلو علاج، نکسیر کا گھریلو علاج، اللہ چاہے تو ہی شفا ملے. کدو شریف 50 گرام، کھیرا 50 گرام، چقندر 50 گرام، روزانہ صبح و شام ان سب کو ایک گلاس پانی میں گرائنڈ کر کے چھان کر بغیر چھانے بہتر پی لیجئے. خالی پیٹ پینا بہتر. مدت تا حصول شفا، بچوں کے لیے کہ 5 تا 10 سال آدھی خوراک، اور سہولت یہ کہ مرد و عورت ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ پرہیز، یہ علاج کریں یا نہ کریں، نکسیر کے مریض کے لیے گرم تاثیر والی چیزوں اور گوشت کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے. دیگر فوائد: ہاتھ پاؤں میں یا پیشاب میں جلن، معدے میں تیزابیت، یا جن کو گرمی زیادہ لگتی ہو، یہ سب بھی اس گھریلو علاج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تاکید: ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیجئے. کیا نکسیر اس کو بولتے ہیں، جیسے کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کو ناک میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے، اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے. بعض اوقات لڑائی میں بھی وہ لڑاکے جو ہوتے ہیں وہ سر مارتے ہیں، جس کو ٹکر مارنا بولتے ہیں، اس کو ٹکر مارتے ہیں ناک پر، تو اس سے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نکسیر پھوٹ گئی اس کی، تو یوں خون بہ رہا ہے. تو بعضوں کو یہ مرض ہوتا ہے، گرمیوں میں خاص کر یہ بڑھ جاتا ہے، یا گرم چیزیں کھا لی، جیسے ابھی میں نے آپ کو پرہیزی بھی بتائی، تو یہ زیادہ کھا لی، تو اس طرح بھی مطلب یہ نکسیر جو ہے نا اس کی پھوٹ جاتی ہے اور خون آنا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو خون ناک سے بہ کر نکلا، یہ بہ رہا ہے، یہ ہے بھی ناپاک. ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا جان آپ سے یہ سوال ہے، اسپرے سے وضو ہو جائے گا؟ اللہ اللہ، اسپرے سے وضو ہو جائے گا؟ اس میں ایسا ہے کہ اسپرے سے وضو، اسپرے کرنے سے وضو ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اگر خالی اسپرے کر لیا اور یوں مل لیا تو ملنے سے تو وضو ہوگا نہیں. وضو میں 4 فرض ہیں. یہ پورا منہ مطلب کہ ٹکلی پورا جو ہے یہ دھونا ہوگا. دونوں ہاتھ، یہ انگلیوں کے ناخن سے لے کر کونی سمیت یہ 2. پاؤں پورے ٹخنے سمیت دھونے، یہ 3 فرض. دونوں پاؤں، ایک فرض میں دونوں پاؤں شامل ہیں. اور پھر سر کا چوتھائی مسح، چوتھائی سر کا مسح، یہ بھی فرض ہے. مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری پہنچ جائے. تو اسپرے اگر سر پہ کسی نے چھڑکا مسح تو اس کا ہو گیا، سمجھے. لیکن دھلنا بڑا مشکل ہے. دھلنے میں یہ کہ ہر حصے پر، سپوز کرو کہ آپ کو ہاتھ اسپرے سے دھونا ہے، آپ یہ مارتے رہے اسپرے کو، ٹھیک ہے نا، اب مار کے چھوڑ دیا آپ نے تو ایک قطرہ ٹپک گیا، تو یہ کام نہیں چلے گا. بلکہ ہر حصے سے جو عضو دھونا ہے اس کے ہر حصے سے، ہر روئیں سے، روئیں کی نوک سے، سمجھو یہ سب جگہ سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں تو یہ فرض ادا ہوگا. 2 قطرے نہیں بہے، اتنا نہیں پانی ڈالا بہایا تو پھر وہ عضو دھونا نہیں پایا گیا. تو اب یہ کہ یہ
वजू ना हुआ। अच्छा, तो यूं अगर किसी ने स्प्रे पर बहुत एहतियात की और ये सब जगह इस तरह स्प्रे मारा कि चलो भाई वो बह गए कतरे दो दो बिल फर्ज, अगरचे मुश्किल है ये, तो फर्ज अदा हुआ, सुन्नतें इनका क्या करोगे? कुल्ली हल्क की जड़ तक, दांतों की करवटों, ये गाल के अंदर के सारे हिस्से, जबान के ऊपर नीचे जो भी जाहिर हिस्से हैं सब के सब कुल्ली में धुलना, वुजू में कुल्ली में धुलना सुन्नत। और गुस्ल, जब गुस्ल में फर्ज, इधर नाक में नरम हड्डी तक सूंघ कर पानी चढ़ा जाता है, तो नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना ये भी सुन्नत मुअक्कदा वुजू में। और गुस्ल में फर्ज, स्प्रे से इन सुन्नतों का क्या होगा? फिर 3-3 बार धोना, जिन जैसे हाथ धोना है, मुंह धोना है, पाँव धोने, तो ये सब 3-3 बार धोना ये भी सुन्नत और सुन्नत मुअक्कदा ही है। कुल्ली और नाक का जो मैंने आपको बताया ना, भी सुन्नत मुअक्कदा, ये हाथ पाँव मुंह जो धोने का ये 3-3 बार, ये सब सुन्नत मुअक्कदा है। ये सब छूट जाएंगे स्प्रे में, इनका पूरा इम्कान है कि ये छूट जाएंगे। इस तरह स्प्रे इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन बल्कि वुजू प्रॉपर तरीके पर जो किया जाता है उसी के मुताबिक किया जाए। या सैयदी, ये सोशल मीडिया के जरिए सवाल आया है कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सैयदी सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल आया है कि अगर कोई तवाफ़ के दौरान किसी को वज़ू की हाजत हो गई या हरम शरीफ में रश में बैठा हो और मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में है, अब वो जगह छोड़कर जाना, वज़ू खाना दूर है, वापस भी आना है, तो क्या वो वहीं बैठे बैठे वहाँ भी स्प्रे से वज़ू नहीं कर सकता? तवाफ करते करते अगर स्प्रे करेंगे आप तो लोग मसला समझा देंगे आपको। शुरू करके उस पर उड़ा, शुरू करके उस पर उड़ा, तो वो सारे मसला समझाना शुरू कर देंगे और शुरती आकर कांडा पकड़ेगा, बोले हाँ तुझे मसला समझाते हैं, ये ले जाएगा आपको। तो ऐसे भूल करिएगा मतलब। और फिर इस तरह चलते चलते जो आप वज़ू करेंगे और वज़ू टूटा हुआ है, तो इतना हिस्सा जो आपने तवाफ किया वो तो बेवज़ू किया, इसमें भी मसला खड़ा हुआ। तो इस तरह या मस्जिदुल हराम शरीफ में सब स्प्रे लेकर शुश 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 करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल पुलिस की फौज आ जाएगी, ये तो क्या किया है, ये कर क्या रहे। तो ऐसा कोई धंधा ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों बार अगर कहूँ तो मोबाइल लगा तो 20 बार हरम शरीफ की हाजिरियों से मुशर्रफ हुआ हूँ, और आप भी हुए हैं, साहिल भी हुए हैं। हमारा भी वज़ू का मसला होता है। तवाफ में मेरे तो कई बार ऐसा होता था कि एक तवाफ में एक वज़ू करना, सही में वज़ू करना तो जाता था। और ये जितनी मशक्क़त करेंगे, जाएंगे आएंगे, सवाब मिलेगा इसमें भी। करना प्रॉपर वज़ू है। कभी तसव्वुर भी नहीं था कि मैंने कोई शावर से इस तरह ये शावर किया, इसको स्प्रे से वज़ू करने का ज़हन में आया हो, ना कभी किया है। और फिर मस्जिद हराम की आप बात कर रहे हैं यार, वैसे जनरली भी मस्जिद में, मस्जिद के फर्श पर वज़ू करते हुए जो पानी होता नहीं, मुस्तअमल पानी कहलाता है, इस्तेमाल शुदा। तो ये पानी का कतरा, वज़ू के पानी का कतरा फर्श मस्जिद पर गिराना, ये वैसे ही मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है। इससे कैसे बचेगा ये स्प्रे वाला? है बड़ा ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की मतलब यूनिक चीज़ें आम ना की जाए, और इस तरह मतलब मुसलमानों को गुनाहों में डालकर अपनी आखिरत को दाव पे ना लगाया जाए। इनको हम सहूलत देने बैठे, हम सहूलत मतलब देना चाहते ना मुफ्तियान किराम से। हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर दरसी निज़ामी किया हुआ आलिम और अल्लामा नहीं होता। ये मतलब बाकायदा जो मुफ्ती होते हैं ना, जो दारुल इफ्ता में बैठे हैं, फतवा नवेसी करते हैं, ये ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं। तो उनसे मालूम करें, शायद कोई भी मेरी बातों से इख्तलाफ नहीं करेगा, कोई भी मुफ्ती होगा कि बात तो सही कहता है कि सुन्नतें छूट जाएंगी, मतलब सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए स्प्रे से वज़ू ना किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इल्लल्लाह 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 अल्लाहू
اللہ ختم رسل کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ حج کا شرف ہو پھرتا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ۔ یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آپ کو حج کے اقسام بتاؤں گی۔ حج کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ نمبر 2 تمتع، تمتع یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا جائے۔ نمبر 3 قران، قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے، اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ پیارے باپا جان، میری عمر 7 سال ہے، الحمدللہ میں نے قرآن کریم مکمل کر لیا ہے۔ اللہ پاک میرے اہل سنت کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آئے ان کی پیار ہو جائے۔ یا اللہ یا اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام عبدالحمید اتاری ہے۔ امیر سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی فلاحی ادارے یا کوئی جماعت وغیرہ اگر کوئی بائک، لیپ ٹاپ یا دیگر کوئی چیز وہ اگر کسی کو دیں تو وہ بندہ جو اہلیت نہیں رکھتا وہ کوئی بہانہ بنا کر اگر وہ چیز حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ اگر وہ حقدار نہیں اور اپنا حقدار ہونا ثابت کرے گا تو ذرا جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا۔ اگر ایسا کرتا ہے، دھوکہ دے کر لیتا ہے تو گناہ گار ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام سید ارحم ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، ایک کتاب میں تھا حضرت الیاس علیہ السلام نبی مرسل ہیں، نبی مرسل سے مراد کیا ہے اور مرسلین انبیاء کرام سے کیا مراد ہے؟ نبی مرسل بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی، تو حضرت الیاس علیہ السلام نبی ہیں اور ابھی تک انہیں ظاہری طور پر وفات پیش نہیں آئی۔ 4 انبیاء کرام ظاہری طور پر ابھی وہ وفات انہیں پیش نہیں آئی، تو ایک تو ہے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ دونوں انبیاء جو ہیں نا یہ خشکی پر ہیں، زمین پر، اور 2 اوپر ہیں آسمانوں پر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ 4 انبیاء کرام۔ اولو العزم مرسلین، تو اس میں غالباً یہ رسولوں کے لیے کہ اولو العزم مرسلین یعنی کہ بہت زیادہ عزت والے، عظمت والے رسول، یعنی جب بھی اولو العزم رسول کہا جائے تو ان سے یہی 5 رسول مراد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1
اللہ के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नंबर 3 हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम। नंबर 4 हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम। और नंबर 5 हज़रत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम। कुल रसूल 313 है। नबियों, हर रसूल नबी है, लेकिन हर नबी को रसूल नहीं कहा जाता। नबियों की तादाद अल्लाह जाने। ये अवाम बोलते हैं 1,24,000, ये गलत बोलते हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। हकीकत में मतलब ये कि कितनी तादाद है वो रब ही जानता है नबियों की। जो नबी आए उनको वही आई बेशक, लेकिन इसको तबलीग का हुक्म नहीं दिया गया, तो वो नबी कहलाते हैं। और रसूल वो होते हैं कि जो जिन पर वही आती है और तबलीग का इनको हुक्म दिया गया, वो रसूल कहलाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे पापा जान, अभी आपने बद्दुआ की मुतालिक मदीपुर इरशाद फरमाए, अगर इसी तरह से माँ अपने बच्चों को नहीं बल्कि अपने आप को बद्दुआ दे तो क्या इस सूरत में क्या करे? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। आप मुझे मेरे घर वालों दुआओं से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ, ये भी एक शोबा है। बाज़ औरतें इतनी जज्बाती होती हैं कि फिर अब बच्चा मानता नहीं है, तंग करता है, तो अपने आप को कोसने देती हैं। मेरा हार्ट फेल हो जाए तो मेरा ये हो जाए, ये करती हैं इस तरह। ये भी ज़रा कि बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी नादानी है कि अगर जो कहा और वो हो गया तो कितनी बड़ी बुरी बात है ये। तो अपने आप को भी इस तरह कोसने नहीं देनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में दुनिया के कई मुल्कों से और हज़ारों शहरों से हमें उम्मीद है कि आशिकान रसूल जमा हैं। जो हमारे पास तादाद पहुंची है जिन मुल्कों की और जहां से जमा हैं, उनमें से जामियतुल मदीना सैदपुर बांग्लादेश, स्टैटफोर्ड लंदन, चिटागोंग बांग्लादेश, जामियतुल मदीना नेपालगंज यूके, लंदन वेम्बले, डर्बी यूके, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया यूएसए, ब्रैडफोर्ड यूके, मिलान इटली, जामियतुल मदीना मदरबारी बांग्लादेश, भैंस कॉलोनी कराची, जामियतुल मदीना चिन्योट पंजाब पाकिस्तान, जिना टाउन फैसलाबाद पंजाब, फैज़ान मदीना जौहर टाउन लाहौर, मदरसुल मदीना डिफेंस लाहौर, सखर सिंध, शेरा कोट इकबाल टाउन लाहौर, कुंजा ज़िला गुजरात पंजाब, ताज बाग लाहौर, हैदराबाद, हाफिज़ाबाद पंजाब, डेरा इस्माइल ख़ान और जहाँ जहाँ शिकान रसूल जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीख रहे हैं और अल्लाह की रहमत से किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का जलवा भी लूट रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि अपने सीने को राज़ों का कब्रिस्तान कैसे बनाएं, इसके बारे में कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि किस तरीके से अपनी ज़ुबान और दिल को कंट्रोल किया जाए कि अपने राज और अपनी जो खुफिया बातें हैं वो दूसरों के सामने ज़ाहिर ना। ये है बड़ा मतलब है कि ये भी प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात बंदा उसे रहा नहीं जाता, अपनी कमज़ोरियाँ दूसरे को बयान कर देता है और अगला जो है हावी हो जाता है। किसी का राज उसको पता चल गया तो उसका पेट चढ़ जाता है और इसको ये उगलना शुरू कर देता है और इस तरह मतलब ये कि मसाइल खड़े होते हैं। वो कहा गया है बशर राज़े दिली कहकर ज़लील व ख़ार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। फूल से जब खुशबू निकल जाएगी तब वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये इसलिए अपने दिल के राज किसी को बताए ना जाए। इसमें इस तरह के जैसे मैंने जो दो चार जुमले कहे, इस तरह की चीज़ें जहन में लाने से बंदा जो है अपना मजबूत होता है। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि वो राज किसी को कहना गुनाह होता है। मसलन यार आज तो मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई। अब अगर ये कज़ा अपनी कोताही से हुई है और ये कह रहा है कि यूँ मेरी नमाज कज़ा हो गई, तो ये तो गुनाह का इज़हार कर रहा है। इसी को तो बेबाकी कहते हैं
کہ چوری اور سینہ سوری. تو گناہ کا اظہار یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. جی ہاں، لیکن یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کا اظہار سرے عام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں ارے میں نے اس کو گھونسا مارا، یوں کر دیا، اس کو لات ماری، یوں کر دیا. اب اگر اس کو ظلم نے مارا ہے تو ایک تو ظلم آپ نے کیا، اب اس ظلم کا اظہار دوسرے پر کر رہے ہیں. میں نے ظلم کیا، میں اپنی ہوشیاری یا اپنی وہ بتانے کے لیے، یہ بڑے گناہ ہیں. غصے میں کسی کو مار دیا، اس نے گناہ تو کیا اس نے، لیکن اس کا اظہار کیوں کر رہی ہے؟ اسی طرح لوگ مطلب یہ نہیں کہ جیسے دینی ماحول میں آ جائیں گے تو پھر یہ اپنے کارنامے سناتے ہیں. آپ کو پتا ہے پہلے تو میں جوا میں اتنے ہار جاتا تھا، اب تو میری بچت ہو گئی ہے، دینی ماحول میں آ گیا ہوں میں. رات بھر وہ گنجیفہ کھیل رہا تھا، تاش کھیلتا تھا، لوڈو کھیلتا تھا، فلاں کرتا تھا. یار گالیوں کی عادت جاتی ہی نہیں تھی، اب نکل گئی میری عادت. اب یہ جو بیان جو کر رہا ہے مقصد کیا ہے کرنے کا؟ اگر بیان کرنے کا واقع 100% مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ایسا ماحول ہے کہ الحمدللہ میں سدھر گیا اس میں، تو آپ لوگ بھی آ جائیں دعوت اسلامی میں. تو اگر اس طرح کے گناہ یا جو بھی گناہ ہوں گے کی عادت نکلے گی. انما الاعمال بالنیات، لیکن ہر وقت یہ نیتیں ہوتی نہیں ہیں، بتاتے ہیں اس کو مارا، اس کو جو قتل کیا ہوگا یہ تو جیسے مطلب بادلوں میں پرواز کر رہا ہوتا ہے، یار میں نے تو بندہ مارا ہے، میں نے تو بندہ قتل کیا ہے. سو سے کارنامے مجھے تو زندگی گزر گئی نا، طرح طرح کی باتیں لوگ اپنی بتا رہے ہوتے ہیں. تو پولیس والے کو مارا، تو اس طرح کی مطلب کیا مطلب بتانے کی حاجت کیا ہے؟ فلاں کو مارا، شرابی تھا، ہیروئنی تھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، یار میں تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا تھا. تو اب اگر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعوت اسلامی یا دینی ماحول کی وہ عظمت بتانا چاہتا ہے تب تو ضرورتاً اجازت ملے گی. لیکن یہ غور کر لے، 112 مرتبہ سوچ لے کہ اس میں اپنی ذرا ہوشیاری تو نہیں کر رہا. میں یوں تھا، میں یوں تھا، میں یوں تھا، لوگ میرے سے ڈرتے تھے، دیکھ کر مجھے گلی بدل دیتے تھے، جیسے کہ میں شیر ببر تھا، جنگل کا بادشاہ تھا. تو اس طرح کی ہوشیاریاں نہ کریں، اللہ کے عاجز بندے بنے. گناہوں کا اظہار، یہ سارے راز ہیں جو کل قیامت کے دن ان کا کھولنا جو ہے نا یہ مہنگا پڑ جائے گا. اگر رب ناراض ہوا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. یوں مطلب سینہ جو ہے رازوں کا قبرستان بن جائے. یہ انہوں نے جو محاورہ لیا نا، تو یہ رازوں کا قبرستان، جو بھی راز آئے وہ اندر دفن ہو گئے. ہر بات دوسرے کو بتانے والی نہیں ہوتی، نہ گھر کی باتیں بتانے والی ہوتی ہیں. گھر کی باتیں بتاتے ہیں. میرے پاس میں نے چند بار ایسا ہوا ہے خصوصی مدنی مذاکرے میں، میرا باپ شراب پیتا ہے، میری ماں میرے باپ سے لڑتی ہے، حل بتائیں. تو میں کبھی کیا یہ مدنی چینل پر لائیو چلائیں آپ کا سوال؟ پھر آپ کے ماں باپ جو آپس میں صلح کر کے جو دونوں مل گئے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا کرو گے کہ وہاں جا کر تم نے ہمارا ڈنکا بجا دیا. تو یوں مطلب پولے کھولنے میں دیر نہیں لگتی. میرا بڑا بھائی شراب پیتا ہے، ارے بھائی شراب تو پیتا ہے لیکن پسٹن بھی رکھتا ہوگا نا. پتہ چلے گا کہ تم نے جا کر وہ دعوت اسلامی کے اس میں ہزاروں کے مجمع میں جا کے سوال داغا ہے، تو یہ نہیں وہ غصے میں نکل کر پسٹن نکال لے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں ہونا ضروری نہیں، لیکن اس طرح کے پولے کھولنے والا مجھے مطلب ہوئے ہیں سوالات، ابھی کبھی ہو جاتے ہیں. تو پھر میں سوال رکوا لیتا ہوں کہ یہ چلانا مت، مر جائے گا یار جو سوال کر رہا ہے، خاندان میں جھگڑے ہو جائیں گے. تو کہاں کیا بولنا چاہیے اپنے کو عموماً بھان ہوتا نہیں ہے، شعور نہیں ہوتا، اور ہم لوگ بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب شراب سے بھی توبہ کا بولنا ہے
تو یوں بول سکتے ہیں کہ مطلب میرا بھائی شراب پیتا ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ایک جاننے والا یا ہمارا ایک عزیز شراب پیتا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا، تو یوں مطلب یہ کہ تھوڑا گلی تنگ کر دے کہ بندہ اصل تک پہنچ نہ سکے، بات بھی بن جائے. خالی یہ ضروری ہے کہ بھائی اور چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی اور بہن ہوئی اور داماد اور یہ سب بولنا ضروری ہے تاکہ یہ پھر مزید آستینیں چڑھا کر آپ سے انتقام لیں. بیوی لڑائی کرتی ہے، یوں بھی بولتے ہیں ارے بھائی وہ زیادہ لڑے گی تو پتہ چل جائے کہ تم وہاں بول کے آئے ہو، اس لیے تم گئے تھے وہاں. اس لیے مطلب حکمت عملی سے سوال ہو جس میں کسی کی طرف، کسی فرد کی طرف، کسی گھرانے کی طرف، کسی خاندان کی طرف نشاندہی نہ ہو. کسی ادیب سے پوچھا گیا آپ راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس راز کے لیے قبر بن جاتا ہوں. با کمال لوگوں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلوب الابرار قبور الاسرار، یعنی نیک لوگوں کے دل رازوں کی قبریں ہوتے ہیں. یعنی جس طرح قبر میت کو اپنے اندر چھپائے رکھتی ہے، اسی طرح نیک لوگ جو ہیں وہ رازوں کو اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں. حوالہ احیاء العلوم جلد پہلی پیج نمبر 84، جلد والیوم فرسٹ پیج نمبر 84. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے محمد عثمان صاحب ہیں بھاولپور سے کہ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، جو لوگ قرآن پاک درست نہیں پڑھتے، جب ان سے کہا جائے کہ درست سیکھنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہمیں استاد صاحب نے ایسا ہی پڑھایا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ استاد صاحب نے اگر ایسے پڑھایا ہے، اول تو یہ ایسے پڑھایا ہے، اس کی گارنٹی کیا؟ حال یعنی کہ بعض لوگ دوسروں کا کندھا استعمال کر لیتے ہیں اور وہ ہوتا غلط ہے. استاد صاحب صحیح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بھائی یہ جو ہوتا نا اس میں چپڑ اتنی ہوتی نہیں ہے کہ یہ صحیح پڑھ سکے، تو یہ بوکھلا کر کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو استاد نے پڑھایا ہی یوں ہے، معاذ اللہ. تو اس لیے مطلب اس طرح استاد پر ڈالا نہ جائے، تو نمک حرامی ہوئی نا. ایک تو اس کو سکھائے اتنا، محنت کرے، کوشش کرے، اور بدنامی کا داغ بھی اپنے اوپر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے تار. مدینے کی سختی پر صبر کی فضیلت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا. یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ مدینے کی زیارتیں پڑھ یا سن لے اسے مدینہ پاک کی بار بار بعد اب حاضری نصیب فرما اور اس کی ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب مغفرت فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مدینے سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مدینہ شریف کے 12 نام، مدینہ طیبہ کی تکالیف پر صبر کی فضیلت، مدینہ شریف کی 17 خصوصیات، مسجد نبوی شریف میں نماز کے فضائل اور بہت کچھ. اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www
www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला तफसीर नूरुल इरफान से 85 मदनी फूल किस्त 4, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला तफसीर नूरुल इरफान से 85 मदनी फूल किस्त 4, दुनिया भर में इस्लामी भाई 14,28,301, 1,428,301, दुनिया भर में इस्लामी बहनें 7,67,607, 767,607, मजमूई कारकर्दगी 21,95,908, 2,195,908। शोबा मामलत बराए इस्लामी बहनें पाकिस्तान। रिसाले का नाम तफसीर नूरुल इरफान से 85 मदनी फूल किस्त 4, हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। तादाद के एतबार से नुमाया डिवीज़न। ज़िक़ादा शरीफ 1446 के नफली रोज़ों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 31,172, 31,172। इस्लामी बहनों की तादाद 7,340, 7,340। टोटल नीयतें 38,512, 38,512। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जुलहज्जा शरीफ भी तशरीफ ला रहा है। सुभान अल्लाह। आइंदा बुध से इंशाअल्लाहुल करीम मंगल से रोजाना मदनी मुज़ाकरे की आइंदा मंगल 27 मई से रखते हैं। ठीक ठीक। क्या इसका कोई ऐलान जारी हो गया है? नहीं, आज ही करना है। तहरीरी जारी हो गया ऐलान? जैसा अभी ऐलान करना है, जैसे आप फरमाएं। तो जी बुध से शुरू करते हैं। बुध को चांद का ज्यादा चांस बुध को ही है। ठीक। फिर अल्लाह की मर्जी है, मंगल को अगर हो गया तो जैसे बुध से बाकायदा मदनी मुज़ाकरों का आगाज इंशाअल्लाह करीम रात को उमूमी खुसूसी और इंशाअल्लाह सबकी तरक्की में होती रहेंगी इंशाअल्लाह। और इसमें चूँकि ये माह हराम है और माह हराम के अपने फ़ज़ाइल हैं, आप कुछ बयान करेंगे फ़ज़ाइल हाजी अमीन? जी मैं कर देता हूँ, जैसा फरमाएं। आप कर दीजिए जी। करी जी। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन 10 दिनों यानी ज़ुल्हिज्जा के जो इब्तिदाई स्टार्ट की जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों से ज़्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह पाक को महबूब नहीं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना राह खुदा में जिहाद? फरमाया, और ना राह खुदा में जिहाद मगर वो कि अपनी जानो माल लेकर निकले फिर इनमें से कुछ वापस ना लाए, यानी सिर्फ वो मुजाहिद अफजल होगा जो जानो माल कुर्बान करने में कामयाब हो गया। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक को अशरे ज़ुल्हिज्जा यानी जो 10 डेज़ हैं ज़ुल्हिज्जा के, फरमाया अल्लाह पाक को अशरे ज़ुल्हिज्जा से ज़्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं। इसके हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों और हर शब का क़याम शब क़द्र के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 दिन जो हैं वो फैज़ान मदीना आ जाएँ तो इंशाअल्लाहुल करीम 10 दिन मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला होगा और साथ ही वो कसीर तादाद में आशिकान रसूल रोज़ा भी रखेंगे, तो सहरी का भी यहाँ रोज़ाना सिलसिला होगा और इंशाअल्लाह सीखने सिखाने का अमल भी होगा। और इंशाअल्लाहुल करीम नीयत है कि इन दिनों में बाकायदा कोर्स भी कराया जाए ताकि जो आने वाले हैं वो यहीं दिन में कोर्सेज़ के ज़रिए जो है वो इल्म दीन हासिल करें। जी अमीर रसूल। माशाअल्लाह। इसमें जिनसे हो सके वो कम से कम 7 रोज़े रख लें। वैसे तो 9 रोज़े रखने हैं और भी 10वीं का तो रोज़ा रख नहीं सकते, जायज़ नहीं है। 9 रोज़े रख लें, हर रोज़े का साल भर के रोज़े के बराबर सवाब अभी आपने सुना। 7 रोज़े हमने ये फर्स्ट कैटेगरी, 5 रोज़े सेकंड कैटेगरी और 3 रोज़े ये थर्ड कैटेगरी। ये अपनी तंजीमी एतबार से शोबा इस्लाह अमाल को आप इसकी कारकर्दगी दें।
और कम से कम 3 रोज़े तो रख ही लें। 3 रोज़ों की भी फजीलत बहुत है कि जो इन पूरे माह हराम में जो मेरा जुम्मा हफ्ता 3 रोज़े रखे तो उसको 2 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक रिवायत ये है। एक रिवायत एक मुतलक है कि पूरे माह हराम में जो 3 रोज़े रखे तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ इस तरह की रिवायत होती है कि पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो ये छोटे गुनाह होते मुराद, सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। 3 रोज़े तो रख लें तो ये पूरे महीने की मतलब है। तो हम ऐसा करते 10 दिन के बजाय पूरे ज़ुल्हिज्जा शरीफ में इसको तकसीम तोसी कर देते हैं। तो पूरे महीने में 7 रोज़े रखें तो ये मुमताज़ बेस्ट। 7 के बजाय 5 रोज़े रखें तो बेस्ट, और 3 रोज़े रखें तो गुड। और रोज़ाना 10 दिन में 700 मरतबा दुरूद शरीफ की भी अगर तरकीब हो जाए तो मदीना मदीना, तो इसकी कारकर्दगी भी दें। इस्लाही बहनें भी अपने शोबे में दें इस्लाही अमाल के, इस्लाही हुआ इसकी कारकर्दगी अपने इस्लाही अमाल के शोबे में दें। तो इंशाल्लाह इसकी भी फिगर जो है अब तो रोज़ बयान होंगे इंशाल्लाह। अभी से दे दें तो चांद रात से ही फिगर बयान शुरू हो जाएंगे होना। तो इससे तरगीब मिलती है कि वाह भाई इतने सारे तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी शामिल हो जाता हूँ। जैसे अभी आपने ज़िकात शरीफ का गालिबन 31,000 प्लस रोज़ेदार की नियतों का अभी आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शबे कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल-हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल-हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल व रब्बिल अर्शिल अर्शिल अज़ीम। अज़ीम। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल-हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, वज़ू में 3 मरतबा कुल्ली करना सुन्नत है, बताइए ये कौन सी सुन्नत है। सवाल नंबर 2,
کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو ابھی تک ظاہری وفات نہیں آئی؟ صرف تعداد بتائیے۔ سوال نمبر 3، جن انبیاء کرام علیہم السلام کو ابھی تک ظاہری وفات نہیں آئی اور وہ آسمانوں پر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 17 مئی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حاجی اپنے گھر والوں میں سے کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ جواب 400 افراد کی۔ سوال نمبر 2، کن خوش نصیبوں کو ضیوف الرحمان یعنی اللہ کے مہمان فرمایا گیا؟ جواب حاجیوں کو۔ سوال نمبر 3، حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال کیا ہے؟ جواب 21 ذیقعد شریف۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اقبال اتاریہ جڑاوالا، فضیل رضا اتاری حیدرآباد، سید اظہر اتاری جامعۃ المدینہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، بنت شوکت گجرانوالہ، علی حسن میلسی، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، ابو فراز اتاری فیضان مدینہ کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔